Hello friends, in today's unit 3 hydraulic pumps, motors, actuator and valve, we'll see regarding the rotary actuators. In our previous lecture we have seen regarding the linear actuators. So here we'll see regarding the rotary actuators. What are the rotary actuators? Now this is the rotary actuator. We all know what is the actuator. We have seen in the previous lecture that what are the actuators. Actuators are the component of a machine that converts the fluid pressure into mechanical output, that we have studied. In our previous lecture we have seen regarding the linear actuator, but now in this video we will see regarding the rotary actuator. What is rotary actuator? In previous video lecture we have seen rotary actuators are those actuators which converts output motion of the shaft as as angular motion. We can say that whatever the output motion of the shaft, it is angular from between 0 to 360 degree. So here you can see this is one kind of rotary actuator. In detail we will see one by one. ये जितने भी actuators हैं one by one हम देखेंगे ये किस तरह प्रेशराइज्ड फ्लूइड को रोटरी में कन्वर्ट करते हैं. So let us see the definition of rotary actuator. A rotary actuator is an actuator that produces a rotary motion or torque. The simplest actuator is purely mechanical, where linear motion in one direction gives rise to the rotation. It means again यहाँ पर जो प्रेशराइज फ्लूइड है पिस्टन की वॉल पे आता है और linear motion is converted to rotary. That is the actual work of the rotary actuator. Hydraulic motors are the rotary actuators. It is the one type of hydraulic motor जो भी हैं वो एक rotary actuators हैं. जो rotary actuator name है वो it is reserved for a particular type of unit which is limited to 360 degree rotation, not more than that. आगे भी मैंने बताया कि जो रोटेशन है वो 0 से 360 डिग्री के बीच में होगा. हाइड्रोलिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट फ्लूइड इनटू रोटरी पावर और कन्वर्ट्स फ्लूइड प्रेशर इनटू टॉर्क. तो रोटरी एक्चुएटर इज अगेन हाइड्रोलिक मोटर इज वन टाइप ऑफ रोटरी एक्चुएटर विच कन्वर्ट्स द फ्लूइड प्रेशर इनटू टॉर्क. टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर. इन अदर वर्ड, the motor output pressure level is determined by resisting torque at the output shaft. हमें अगर हाइड्रोलिक मोटर का टॉर्क मेजर करना है तो जैसे हम आईसी इंजन में डायनामोमीटर लगाकर और उस पर लोड अप्लाई कर बाय रेजिस्टिंग द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट के रोटेशन को या शाफ्ट के जो टॉर्क है उसको रेजिस्ट करके हम उसका पावर आउटपुट मेजर कर सकते हैं. तो सिमिलरली हाइड्रोलिक मोटर में भी हम इसी तरह पावर आउटपुट मेजर कर सकते हैं. ए हाइड्रोलिक पंप इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल फोर्स एंड मोशन इनटू फ्लूइड पावर. हाइड्रोलिक मोटर इज नॉट अ हाइड्रोलिक पंप व्हेन रन बैकवर्ड. A design that is completely acceptable as a motor may operate very poorly as a pump in certain application. It means कि reverse of the hydraulic pump is hydraulic motor is not the hydraulic pump. अगर हम उसको हाइड्रोलिक मोटर को उल्टा चलाएंगे तो हाइड्रोलिक पंप हो जाएगा, ऐसा नहीं है. और कई जगह हाइड्रोलिक मोटर को अगर एज अ पंप यूज़ करते हैं तो जो ऑपरेशन है उसका इट इज़ वेरी पुअर, एफिशिएंसी इज़ वेरी लो, वेरी पुअर. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोटरी एक्चुएटर्स आर देयर? सो फर्स्ट वन इज वेन टाइप ऑफ rotary actuator. In this type of actuator we'll see later on. In this type of actuator, vane is used where the pressurized fluid is acting on the vane. Second is rack and pinion rotary actuator with shield output shaft. Third is
rotary and pinion, rack and pinion rotary actuator with low pressure sealed shaft. Spiral shaft rotary actuator, chain and sprocket rotary actuator. So here one by one we will see the so total 1, 2, 3, 4 and 5 different types of actuators, rotary actuators are there. Now let us see the vane type of actuator. What is vane type of actuator? In vane type of actuator, here there are two type of वेन एक्चुएटर एज यू कैन सी इन द डायग्राम. यहाँ पर ये एक वेन है, ये सील्ड ट्यूब है. इसका मैं एनिमेटेड वीडियो आपको बाद में दिखाऊंगा लास्ट में कि कैसे ये वेन टाइप ऑपरेट होना है. फर्स्ट लेट अस गो टू द कंपोनेंट्स. इसके कंपोनेंट्स सारे हमको स्टडी एक वन बाय वन हम देख लेते हैं. सो दिस इज़ द सिंगल वेन टाइप rotary actuator and this is dual vane type rotary actuator. यहाँ पे जो है CCW and CW ये दोनों पोर्ट है. इट मीन्स दिस इज क्लॉकवाइज पोर्ट, यानी जब यहाँ से फ्लूइड एंटर होता है, आई विल जस्ट शो यू बाय द डायग्राम. जब फ्लूइड यहाँ से एंटर होता है इन दिस डायरेक्शन इंटरनली, तो ये जो वेन है, जो जितना भी सारा प्रेशर है वेन पे यहाँ लगेगा, यहाँ पर, और इसकी वजह से ये वेन जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी क्लॉकवाइज. CW मीन्स क्लॉकवाइज पोर्ट. नाउ when pressure or pressurized fluid is acting on this part, what will happen? The fluid which is entering will create a pressure on this wall. इस वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा और इसकी वजह से ये काउंटर क्लॉकवाइज वेन रोटेट होगा यहाँ तक. यानी दिस इज टर्म्ड एज काउंटर क्लॉकवाइज पोर्ट और ये है क्लॉकवाइज पोर्ट. यानी वेन की जो डायरेक्शन रोटेट होती है उस इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ इट इज़ रोटेटिंग, कैसे ये रोटेट होता है. तो यहाँ पर एक ही वेन दी गई है, इसलिए इसको सिंगल वेन पंप कहा जाता है. और इसका जो मैक्सिमम जो टर्निंग रेडियस है उसको लिमिटेड किया है 280 डिग्री तक. मोर देन 280 डिग्री वी कैनॉट टेक द रोटेशन और एंगुलर रोटेशन ऑफ द सिंगल वेन पंप. अब जहाँ पर ये जो ड्यूअल वेन पंप है, अगर ड्यूअल वेन पंप की बात करें तो ये अगेन सेम कंस्ट्रक्शन इज सेम, सिर्फ यहाँ पर दो वेन है, एक वेन यहाँ पे है और एक वेन यहाँ पे है. जब भी फ्लूइड यहाँ से एंटर होता है तो इस वाले वेन पे ये फोर्स क्रिएट करता है और ये इस वाली वेन रोटेट होती है इस डायरेक्शन में. तो इट इज़ अ क्लॉकवाइज. और इसी तरह काउंटर क्लॉकवाइज, जब फ्लो यहाँ से फ्लो होता है, जब फ्लो यहाँ से होता है, आई विल जस्ट शो यू. यहाँ से जब भी फ्लो होता है तो वो इस वेन को इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और दैट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन. अब यहाँ पर लिमिटेशन क्या है कि उसका रोटेशन जो लिमिटेड है ओनली फॉर 100 डिग्री, जबकि सिंगल वेन का रोटेशन जो अवेलेबल है इट इज़ फॉर 280 डिग्री सेल्सियस. उतना रोटेशन, एंगुलर रोटेशन हम ले सकते हैं. सो आई होप द वेन टाइप रोटरी एक्चुएटर इज क्लियर टू यू. सिंगल वेन पंप एंड डबल वेन पंप. नाउ द सेकेंड वन, रैक एंड पिनियन टाइप रोटरी एक्चुएटर. नाउ व्हाट इज रैक एंड पिनियन टाइप रोटरी एक्चुएटर? नाउ you can see here, this is the rack. There are two rack 1 and rack 2. One port is given here, other port is here, one port is here. So there are total 3 ports, जिसमें से 2 पोर्ट है CCW पोर्ट है, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2,
और CW पोर्ट एक ही है, यानी क्लॉकवाइज। इट मीन्स दिस इज द पिस्टन। ये दोनों जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, वर्टिकल रेक्टेंगल ब्लॉक, वो पिस्टन है। तो जब भी फ्लूइड यहाँ एंटर होगा, व्हाट विल हैपन, दैट विल ट्राई टू, नाउ जब भी फ्लूइड यहाँ एंटर होगा तो इट विल ट्राई टू एक्सर्ट फोर्स on this wall of the piston and on this wall of the piston, and because of that this will move outward, so the rotation will be clockwise of this pinion. And when the flow takes place from this and this port, what will happen, both piston and both the piston will move to the inner side, दोनों inner side में move होंगे, और the rotation of pinion will be anti-clockwise. So you can see this is the output shaft on which this pinion is placed, this is the rack. तो जब CCW पोर्ट में से फ्लूइड एंटर होगा, प्रेशराइज फ्लूइड, ये दोनों पिस्टन इनर साइड पे मूव करेंगे, रैक इनर साइड पे आएगा, तो दिस विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दैट इज टर्म्ड एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द काउंटर क्लॉकवाइज पोर्ट. और जब यहाँ फिर दोनों पिस्टन पास में आ जाएंगे, फिर उसके बाद जब यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा तो दोनों पिस्टन बाहर की तरफ निकलेंगे एंड इट विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस इज हाउ द रैक एंड पिनियन रोटरी एक्चुएटर इट वर्क्स. यहाँ पे ये जो पोर्शन है इट इज़ वेरी विथ सील्ड आउटपुट. यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके इट इज़ वेरी सील्ड आउटपुट. वाई? बिकॉज पिस्टन के दोनों तरफ फ्लूइड आ रहा है, तो इस तरफ भी फ्लूइड आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज में, और काउंटर क्लॉकवाइज में भी फ्लूइड अंदर से आ रहा है, और काउंटर क्लॉकवाइज में भी आ रहा है. तो यहाँ पे पिस्टन सील होना बहुत ज़रूरी है. तो और इसकी जो टोटल टॉर्क रेंज है वो 2500 से 350 पाउंड्स है, रैक एंड पिनियन टाइप रोटरी एक्चुएटर की. नाउ रैक एंड पिनियन टाइप रोटरी एक्चुएटर विथ ए हाई प्रेशराइज्ड low pressure sealed shaft. So let us see. Now here you can see, so this is the counter clockwise and clockwise rotary एक्चुएटर्स में हमेशा CW पोर्ट एंड CCW पोर्ट दिए होते हैं. The rack and pinion design rotary actuators shown in the figure are available with a second rack gear and piston mounted on the opposite side of the piston. अब यहाँ पर देखिए आप कि ये एक पिस्टन है और पिस्टन के साथ रैक अटैच्ड है, फिर पिस्टन, ये दूसरा पिस्टन उसकी वॉल है. यानी जब फ्लो यहाँ से एंटर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी CW पोर्ट से, तो ये पिस्टन जो है वो यूँ इस तरफ रैक मूव करेगा, और ये जो पिनियन है इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस पिनियन इज कनेक्टेड टू द आउटपुट शाफ्ट, और उसकी वजह से जो आउटपुट रोटेशन होगा वो हमें क्लॉकवाइज मिलेगा. सिमिलरली जब हम यहाँ से प्रेशराइज फ्लूइड फ्लो होगा तो ये पिस्टन पे यहाँ फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जिसकी वजह से जो रैक है वो इस डायरेक्शन में आगे मूव होगा, और बिकॉज ऑफ दैट दिस विल रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज. तो ये भी एक रैक एंड पिनियन टाइप है. यहाँ पर दोनों तरफ पिस्टन पे जो फ्लूइड आ रहा है वो इंटरनल साइड से ऑन द वन साइड ऑफ द पिस्टन आ रहा है, जबकि हमने आगे जो देखा था प्रीवियस स्लाइड में वो पिस्टन के दोनों साइड पे फ्लूइड आ रहा है. तो दैट्स वाई सील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर सिर्फ पिस्टन के एक ही साइड पे फ्लूइड आ रहा है, इधर से भी ऑन द आउटर सरफेस और इधर से भी इसके बाहर के सरफेस पे ही फ्लूइड आ रहा है. तो इसकी वजह से व्हेन द फ्लूइड प्रेशराइज फ्लूइड एंटर्स थ्रू CCW वो राइट हैंड साइड में होगा, और
पिनियन का आउटपुट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब CW यानी कि क्लॉकवाइज पोर्ट से फ्लूइड एंटर होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा, और रोटेशन ऑफ द पिनियन विल बी क्लॉकवाइज. सो दिस इज हाउ इट इज़ यूज्ड एंड इट इज़ मेंशन फॉर द लो प्रेशर. लो प्रेशर इट मीन्स ये अप टू 3000 PSI के लिए ही यूज़ होता है. सो दिस इज हाउ द रैक एंड पिनियन टाइप मैकेनिज्म, रैक एंड पिनियन टाइप रोटरी एक्चुएटर वर्क्स. Now this is the spiral shaft. How this spiral shaft it works. यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फ्लूइड है यहाँ से मान लो कि इस पोर्ट से फ्लूइड एंटर होता है, तो इस वॉल पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इसकी वजह से ये जो पिस्टन है, जो पिस्टन एक हॉलो है और उसमें ये टीथ एनग्रेव किए गए हैं. तो जैसे जैसे ये डाउनवर्ड मूव होगा वैसे वैसे ये स्क्रू रोटेट होगा. तो व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द स्क्रू विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, और when the fluid is entering from the CCW port it will rotate anti-clockwise direction. So this is how the spiral shaft rotary actuator वर्क करता है. आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि स्पाइरल टाइप रोटरी शाफ्ट कैसे वर्क करता है. तो इसमें जो सेंटर में एक जो शाफ्ट है उसी पर ही थ्रेड दिए गए हैं, स्क्वायर थ्रेड, और पिस्टन जो है एक स्लाइडिंग नट की तरह, रोटेटिंग स्लाइडिंग नट की तरह वर्क करता है. जो इस पर प्रेशर आता है तो इट विल ट्राई टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल रोटेट द शाफ्ट, और जब काउंटर क्लॉकवाइज साइड से प्रेशराइज होगा तो वो पिस्टन के इस वॉल पे प्रेशर डालेगी, और बिकॉज ऑफ दैट दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज हाउ द स्पाइरल शाफ्ट रोटरी एक्चुएटर इज वर्किंग. Now we'll see the chain and sprocket type rotary actuator. Now you can see here clearly this is the piston, this is again the port is there. So when the pressurized fluid is entering through this port it will act on this piston is sliding over here. When piston moves from left to right it will try to rotate the shaft in clockwise direction, and when fluid is entering through CC port it will move the piston in this direction, and this will help the shaft to rotate in anti-clockwise direction. Sorry, this is the output shaft. So from this or this any one you can consider as a output shaft. So here a chain with the sprocket is connected to the slider or the piston, you can say power piston, and when fluid is entering through CCW port, that is counter clockwise port, तो ये फ्लूइड जो है इस पे एक्ट करेगा, पिस्टन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव होगा, और उसकी वजह से चेन स्पॉकेट के साथ कनेक्टेड जो स्पॉकेट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और ये आउटपुट शाफ्ट रहेगी. यहाँ पर एक आइसोलेटेड पिस्टन भी दिया है. जो आइसोलेटेड पिस्टन will guide and control the sliding of the chain, as well as you can say it is mentioned the smaller isolation piston regenerates into the incoming pump flow. तो जो भी पंप का फ्लो हो रहा है it will help to regenerate the incoming flow of the fluid with fluid pipe to CW, यानी क्लॉकवाइज पोर्ट में जो भी पाइप से फ्लो जाता है तो द आउटपुट शाफ्ट विल टर्न क्लॉकवाइज, और जब भी फ्लूइड जो पाइप कनेक्टेड है CCW से तो पिस्टन जाता है राइट टू लेफ्ट एंड द आउटपुट शाफ्ट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज. So this is how the chain and sprocket type piston
is rotating. So I hope the video presentation is clear to you all, and before to that I will also try, I want to show you the video of the working of the some rotary actuators. So yes, this is the vane type rotary actuator. This is the shoe. Now this is the pressurized fluid entering through the port, and now it is moving the vane. The whatever the force is exerted, जो भी फोर्स है इस पे एक्सर्ट हुआ है, अब जब रिटर्न हुआ तो यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है, यानी ये मोशन इसके एंटी क्लॉकवाइज है. तो ये जो पोर्ट है CCW पोर्ट है, और ये जो पोर्ट है वो CW पोर्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे फ्लूइड आने से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन इसकी हम देख सकते हैं. सो ये देखिए एक स्पाइरल स्क्रू टाइप, कैसे एक स्पाइरल स्क्रू टाइप एक्चुएटर है जो वर्क करता है. तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक स्पाइरल स्क्रू है, और ये जो पिस्टन है ये पोर्ट है. यहाँ पोर्ट से यहाँ पे जो भी प्रेशराइज फ्लूइड है वो इस पे एक्ट करेगा, उसकी वजह से ये रोटेट होता नीचे की तरफ जाएगा. सिमिलरली जब यहाँ से इस पोर्ट से कोई भी फ्लूइड अंदर एंटर होगा, पिस्टन की इस वॉल पे अट्रैक्ट करेगा, तो इट विल रोटेट इन रिवर्स डायरेक्शन एंड मूव अपवर्ड. So this is how the screw type, once again we'll see. तो आप देख सकते हैं किस तरह ये वर्क कर रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. So I hope it is clear to you all friends, and thank you very much for watching this video. I request you all to subscribe to our SSIT.Gandhinagar YouTube channel. Thank you very much.